Okay, so we start the first unit. The content of the first unit are the definition of manufacturing technology, then material removal processes, how the material is converted from the raw material to the finished products, then cutting tool, then geometry of this cutting tool. The single point cutting tool is in your syllabus. The multi point cutting tool is not in your syllabus, but the basic idea you are you have to be know. And their cutting angles, then how these tools angles are nomenclature by our system, that is the ASA system or the ORS system. Then we discuss about the orthogonal and the oblique cutting, then mechanism of chip formation. As per the syllabus, we will continue to the whole topics here. So first topic is today's first topic is the definition of the manufacturing process and what is the manufacturing process. So what is the manufacturing means is the that manufacturing is convert the raw material to the finished product for the some purpose. So in this what happen, we take the some raw material in the form of job, or in the suppose there you take the cuboid, then you final your final product is you want to make it as a cube, so you do some cutting, right? You do some cutting to the cuboid, then to form the cube. So this cutting is done by some this cutting is done by some manufacturing process. This may be the cutting process, this may be the, you can say, the metal machining process. डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में वो डिफरेंट डिफरेंट आपको नाम से मिलेगा. So what is basically the manufacturing process is the to convert the raw material to the finished product by the for the some useful purpose, right? So another is a classification of the manufacturing process. So during the manufacturing we need some process to do to make the final product. So there are the number of the manufacturing process like casting. You did the casting in the second year, है ना? उसमें क्या कर रहे हैं आप? Casting में metal, you have to melt the metal, then you pour into the mold, and then after the solidification to remove the mold and to take the final product as a your job. So this is the casting process. Then there is a forming process. Without the forming process means that you have changed the shape of the raw material, like in the form of sheet. Uh, just yesterday I have discussed the example of the dome, that you have to prepare the dome, then you make the sheet. You have a raw material available as a sheet, then how to make the dome. So that is the forming process, that you make some process like so that it can come in the form of the dome. Another is a machining process or the metal removing process. So this metal removal process is in your syllabus. In this subject we discuss about only the material removal process, that is the machining process, or you can say it as a cutting process. So only this process we discuss in this subject, throughout the subject. ठीक है ना? तो यही वाला प्रोसेस हमको अभी पढ़ना है. इसके अलावा another 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 process is the joining process. It also called the welding process और द सरफेस ट्रीटमेंट प्रोसेस, दैट इज द फिनिशिंग प्रोसेस में जब आप हार्ड ट्रीटमेंट कर रहे हैं या कुछ दूसरा ट्रीटमेंट कर रहे हैं सरफेस के साथ विद द हेल्प ऑफ द एब्रेसिव टू इंक्रीज द सरफेस फिनिश. देन हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस. So these are the some manufacturing process, but we have to be more concentrate on the machining process or the cutting process in this subject. So how this machining process is further classified, or the material removal process is further classified. So it can be classified as the conventional machining process, abrasive process, and the non-traditional machining process. कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस क्या है? जो आप अभी तक देखते आ रहे हैं, जो आपने सेकंड ईयर में करा, सेकंड ईयर में आप वर्कशॉप में गए होंगे, तो यू हैव सीन द सम मशीन्स देयर, दैट लेथ मशीन इज देयर, मिलिंग मशीन इज देयर, ड्रिलिंग मशीन इज देयर. सो जितनी भी ये मशीन है, दीज आर द कन्वेंशनल टाइप ऑफ मशीन. तो हम इनको क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल मशीनिंग बोलते हैं. जो भी हम जॉब इनसे बना रहे हैं उनको कन्वेंशनल मशीनिंग से बनाना बोलते हैं. और इसमें कौन कौन से ऑपरेशन करते हैं आप? इसमें आप करते हैं टर्निंग प्रोसेस करते हैं, ड्रिलिंग प्रोसेस कर सकते हैं, मिलिंग कर सकते हैं, शेपिंग कर सकते हैं, गियर मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं. ये सब आप कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस से कर सकते हैं. कन्वेंशनल मशीनिंग में आपके पास मशीन होनी चाहिए, जॉब होना चाहिए और एक टूल होना चाहिए. ठीक है?
अब दूसरा जो फिनिशिंग प्रोसेस है, मटेरियल रिमूवल प्रोसेस है, वो एब्रेसिव प्रोसेस है। लाइक इन द ग्राइंडिंग, आपने जब ग्राइंडिंग करी होगी, आपने टूल जब ग्राइंड कर रहे हैं, जब आप उसको रिशार्प कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि ये ग्राइंडिंग मशीन है छोटी सी, जिसके दोनों तरफ व्हील्स लगे हैं, उनको हम एब्रेसिव व्हील्स बोलते हैं। तो उससे हम लोग ग्राइंडिंग करेंगे। ग्राइंडिंग करने के लिए एब्रेसिव पार्टिकल जो है वो एक डिस्क में बंधे हुए हैं, वहां पे डिस्क लगी हुई थी, दोनों तरफ व्हील लगे हुए थे, तो व्हील में वो बाउंडेड है। ऐसे ही एब्रेसिव व्हील्स लूज भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? लूज भी हो सकते हैं, और हम लूज एब्रेसिव्स का भी यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्रेस्ड एयर। कंप्रेस्ड एयर रख लिया आपने एक तरफ, लूज एब्रेसिव्स रख लिए, और उन लूज लूज एब्रेसिव्स को आपने कंप्रेस्ड एयर के साथ मिक्स किया, और फिर आपने मटेरियल पे उसको इम्पिंग किया, तो वहां से मटेरियल रिमूव होता है या फिनिश होता है। बहुत ही कम वैल्यू में वो रिमूव होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सरफेस फिनिश प्रोसेस बोलते हैं, मेटल कटिंग प्रोसेस नहीं बोलते। सो अनदर मेथड जो होता है वो होता है नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग। नॉन ट्रेडिशनल मतलब नॉन कन्वेंशनल भी बोल सकते हैं, या हम इसको न्यूअर मशीनिंग मेथड्स भी बोलते हैं, या न्यूअर मशीनिंग प्रोसेसेस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें टूल होना और वर्कपीस होना, है ना? टूल और वर्कपीस है हमारे पास, जो कन्वेंशनल मशीनिंग में है। लेकिन कन्वेंशनल मशीनिंग में आपने ये देखा होगा कि आपको टूल के साथ में जॉब को टच करना है ना? जब उसके ऊपर वो रब होगा, तभी वो उसको काटेगा, है ना? उसका टच होना जरूरी है टूल का वर्कपीस के साथ। लेकिन इन प्रोसेस में ऐसा नहीं होता है। इन प्रोसेस में ऐसा नहीं होता है, ये जरूरी नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि टूल जो है वो टच करे आपके वर्कपीस के साथ। उसके अलावा जो प्रोसेस है उसमें हम लोग एनर्जी यूज कर सकते हैं, एब्रेसिव्स यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग होती है, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग जैसे होती है, ऐसे प्लाज्मा आर्क कटिंग भी होती है। ठीक है ना? तो ऐसे ही बहुत सारे मशीनिंग प्रोसेस हैं जो नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस हैं, और ये हम लोग अभी फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे कि नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग क्या क्या होती है। अभी इस सब्जेक्ट की जहाँ तक बात है, वहाँ पे हमको सिर्फ कन्वेंशनल मशीनिंग में जो टर्निंग ऑपरेशन हो रहा है, जो शेपिंग ऑपरेशन हो रहा है, जो ड्रिलिंग ऑपरेशन हो रहा है, जो मिलिंग ऑपरेशन हो रहा है, वो ही पढ़ना है। ठीक है? सबको आवाज आ रही है? मेरे को सुनाई दे रहा है सबको? जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? यस यस सर। यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। सो इसमें क्या प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ऑफ मशीनिंग में आप ये फिगर देख रहे हैं, इसमें फिगर में आपको एक ब्लैंक दिख रहा है जिसको हम जॉब बोल सकते हैं। ये लेथ पे, मान लीजिए आपने एक लेथ पे लगाया है, और आप इसको लेथ पे लगा के इसको टर्निंग करना चाह रहे हैं। तो टर्निंग करने के लिए आपने क्या किया? इसको लेथ पे लगाया, ये एक NRPM पे मूव कर रहा है, और ये फीड दी आपने, है ना? यहाँ पे क्या दी? फीड दी इसको। तो ये क्या करेगा? यहाँ से मटेरियल रिमूव करेगा, जो इसकी कटिंग एज होगी, टूल की कटिंग एज होगी, वहां से क्या करेगा? वो मटेरियल को रिमूव करेगा। अभी आप एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक दूसरी चीज भी बताना चाहूंगा यहाँ पे। एक होता है ऑर्थोगोनल कटिंग, एक होता है ऑब्लिक कटिंग। क्या होता है? एक होता है ऑर्थोगोनल कटिंग, एक होता है ऑब्लिक कटिंग। अब ऑब्लिक कटिंग किसको बोलते हैं और ऑर्थोगोनल कटिंग किसको बोलते हैं, वो एक थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे वो लेते हैं। अ, ये फिगर 1 मिनट में बनाता हूँ, अगर बनाने की कोशिश करता हूँ, अगर ये बनता है तो। सपोज ये जॉब है आपका, इसको आपने लेथ पे लगा दिया है, और यहाँ पे आपका है कटिंग टूल। ठीक है? तो ये आप यहाँ पे देखें, दिस इज द जॉब, दिस इज द कटिंग टूल। एक ये वाला फिगर देखें, दिस इज द जॉब एंड दिस इज द कटिंग टूल। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये जो एज है, ये दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर टू द कटिंग एज, है ना? परपेंडिकुलर है इसके, किसके? सॉरी, फीड के। फीड कहाँ दे रहे हैं आप लोग इसमें? फीड कहाँ दे रहे हैं?
शीट की डायरेक्शन कहाँ पर है, ये इस साइड में है, ठीक है ना। इधर क्या है, फीड है। आवाज नहीं आ सर रही है आवाज सर। आवाज नहीं आ रही है, मेरे से ड्राइंग नहीं बन रही है इधर, इसलिए वो नहीं हो पाया। एक मिनट। चलो एनीवे, हाँ ये जो मैंने बनाया है एरो, दिस इज द फीड डायरेक्शन, और जो इसके जॉब है, दिस इज द, एक मिनट, ये दिस इज द आरपीएम, ये इस एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज आप इसको घुमा रहे हैं, और दिस इज द जॉब, दिस इज द फीड डायरेक्शन। तो कटिंग एज और फीड डायरेक्शन में कितना, 90 डिग्री का एंगल है। सो दिस इज कॉल्ड द ऑर्थोगोनल कटिंग, दिस इज कॉल्ड द ऑर्थोगोनल कटिंग। ये आप दिमाग में डालें, ये क्या है, ऑर्थोगोनल कटिंग है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्थोगोनल कटिंग। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ टर्निंग, लेथ टर्निंग। ये किसका एग्जाम्पल है, लेथ का एग्जाम्पल है, टर्निंग ऑपरेशन का एग्जाम्पल है। इसी तरह, इसी तरह एक शेपर का एग्जांपल लेंगे। शेपर का एग्जांपल आप यूं समझे, जैसे आपके घर में कारपेंटर आ रहा है, कारपेंटर एक वो स्क्रैपर से स्क्रैप करता है, मतलब रंदा लगाता है, जिसको हम रंदा वाली मशीन बोलते हैं, रंदा लगाता है। उसमें आपने देखा होगा एक ब्लेड होता है ना, और वो रंदा आगे की तरफ लगा रहा है, ठीक है, आगे की तरफ लगा रहा है, तो वो रंदा होते हुए जा रहा है, लेकिन साथ साथ वो कहाँ पे फोर्स लगा रहा है, डाउनवर्ड फोर्स भी लगा रहा है। क्या लगा रहा है, डाउनवर्ड फोर्स भी लगा रहा है। तो उसमें उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, वो आपको एक तो फीड दे रहा है आगे की तरफ, और एक आप लगा रहे हैं फोर्स नीचे की तरफ। एक तो फोर्स लगा रहे हैं आप नीचे की तरफ, एक फोर्स लगा रहे हैं आप वर्कपीस के पैरेलल, ठीक है ना, तभी वो रंदा होगा। तो इसमें कितने फोर्स इन्वॉल्व हुए, दो फोर्स इन्वॉल्व हुए। तो उसको हम क्या बोलते हैं, टू डी टू डी मशीनिंग भी बोलते हैं हम इसको, किसको, ऑर्थोगोनल कटिंग को। तो ये बिल्कुल दिमाग में रखें, ये एंगल क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। अब ये जो एग्जाम्पल बना हुआ है, यहाँ पे जो फोटो बनी हुई है ये वाले, यहाँ पे जो डायग्राम बना हुआ है ये वाला, इसमें हमने क्या किया, ये कटिंग एज जहाँ पे लाल मार्कर जा रहा है, ये कटिंग एज, दिस इज इन अ एंगल, दिस इज इन द एंगल, है ना। तो इसमें हमारे पास फिनिश प्रोडक्ट में क्या दिखेगा, ये वाली एज दिखेंगी। इसमें आप देख रहे होंगे इस फिगर में ये वाली एज नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है ना, ये वाली एज नहीं दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि कटिंग एज जो है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर है फीड के। तो इसलिए कटिंग एंगल बिटवीन द कटिंग एज एंड द फीड इज 90 डिग्री, देन इट इज कॉल्ड द ऑर्थोगोनल कटिंग। और जब उसमें उसके अलावा कुछ भी एंगल दिया है, उसके अलावा हमने कुछ भी एंगल दिया हुआ है, तो वो क्या है, ऑब्लिक कटिंग। क्या है, ऑब्लिक कटिंग। सो दिस इज द फिगर फॉर द ऑब्लिक कटिंग इन द लेथ, इन द लेथ। और शेपर में क्या होगा, अगर वो स्क्रैपर को बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है और सीधा काट रहा है, तो उस वो सिर्फ दो फोर्स इन्वॉल्व कर रहा है, एक तो फीड फोर्स दे रहा है, और एक परपेंडिकुलर फोर्स दबा रहा है, उसको नीचे की तरफ दबा रहा है, तब वो कटिंग हो रही है। तो उसमें को भी हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल कटिंग बोलते हैं। और ऑब्लिक कटिंग लिए क्या करेगा, वो शेपर में ऑब्लिक कटिंग लिए क्या करेगा, उस स्क्रैपर को थोड़ा सा टिल्ट कर सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल ऑब्लिक कटिंग। अब ये चार चीजें आपके पास हो गई, है ना। ऑर्थोगो एक तो हो गई आपके पास ऑर्थोगोनल कटिंग, और दूसरी आपके पास हो गई कौन सी कटिंग, ऑब्लिक कटिंग। ऑब्लिक कटिंग। तो ऑर्थोगोनल कटिंग और ऑब्लिक कटिंग में क्या डिफरेंस है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ऑब्लिक कटिंग को जब आप यूज करेंगे, तो इसमें जो थ्रस्ट फोर्स लगेगा, जो पहले नीचे की तरफ लगा रहा था कारपेंटर, वो थ्रस्ट फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। तो उसमें टोटल कंपोनेंट, तीन कंपोनेंट आते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, ऑब्लिक कटिंग बोलते हैं। एक 2D मशीनिंग है, एक 3D मशीनिंग है। एक में दो फोर्स लग रहे हैं, एक में तीन फोर्स लग रहे हैं, ठीक है ना। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द ऑब्लिक कटिंग एंड द ऑर्थोगोनल कटिंग। थोड़ा सा हम इसको आगे भी पढ़ेंगे। तो इसमें देखें शेप कैसी आ रही है, इसमें शेप आपके पास जॉब की फाइनल शेप ऐसे आएगी, यहाँ पे टेपर्ड आएगा, और इसमें वो टेपर्ड नहीं आएगा, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल क्या है इसका, द मेटल रॉड ऑफ द इरेगुलर शेप, साइज एंड द सरफेस इज कन्वर्टेड इनटू अ फिनिश टू द डिजायर्ड डायमेंशन
and the surface by machining by proper relative motion to the workpiece. So इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अभी अभी मैंने आपको बताया था कन्वेंशनल मशीनिंग में, कन्वेंशनल मशीनिंग में आप नोट कर लें, कन्वेंशनल मशीनिंग में क्या चाहिए, आपके पास मशीन होनी चाहिए, टूल होना चाहिए, वर्कपीस होना चाहिए। और मशीनिंग कब होगी, मशीनिंग कब होगी, जब टूल जो है वर्कपीस को टच करेगा, टूल क्या करेगा, वर्कपीस को टच करेगा, तभी मशीनिंग होगी। प्लीज म्यूट योर म्यूट योर microphone, Vinay Mishra, is mute. Then there should be a relative motion. The दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन भी होना चाहिए, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन भी होना चाहिए, तब वो कटिंग करेगा, ठीक है ना। तो देयर इज ए 3 इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया फॉर द मशीनिंग, 3 क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है। जॉब होना चाहिए आपके पास, टूल होना चाहिए। एक कंडीशन जॉब है, टूल है, लेकिन टूल को वहां पे क्या होना चाहिए, टूल को आपको हार्डर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हार्डर होना चाहिए वर्कपीस से। वर्कपीस से हार्डर होगा तभी वो उसकी कटिंग करेगा। जैसे आप सपोज घर पे वेजिटेबल काट रहे हैं, तो आपके घर के पे नाइफ है, अभी किसी दिन आपको उससे नॉन वेज काटना पड़ जाता है, तो वो उससे नहीं कटेगा, क्योंकि वो उससे ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे ही सेम केसेस है हमारे मेटल मशीनिंग में। आपके पास पहली कंडीशन होनी चाहिए कि टूल हार्डर होना चाहिए, दोनों के बीच में कांटेक्ट होना चाहिए। थर्ड कंडीशन इज द रिलेटिव मोशन होना चाहिए, देयर शुड बी ए रिलेटिव मोशन बिटवीन द टूल एंड द वर्कपीस, सो योर कटिंग इज परफॉर्म। ठीक है, समझ में आ गया होगा अभी सबको। जी सर। नेक्स्ट, मशीनिंग का पर्पस क्या है, प्रिंसिपल क्या है, डेफिनेशन क्या है, ये बना हुआ रह गया, इसको इरेज करेंगे बहुत देर। Okay, so purpose is the most of the engineering component such as the gear, bearing, clutches, tool, screw, nuts, all need dimension and form the accuracy of the good finishing and surfer for their purpose. किसी भी पर्पस के लिए हमको बना करनी है मशीनिंग, तो हम उसमें क्या कुछ कास्टिंग करेंगे, कुछ फोर्जिंग करेंगे। तो और सपोज हमने कास्टिंग करी, तो उसमें जब कास्टिंग करी तो हमारे पास फिनिश प्रोडक्ट नहीं आया, उसके बाद उसकी हमको मशीनिंग भी करनी है, उसको 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 यूज करने के लिए, उस जो फिनिश प्रोडक्ट है हमको उसको यूज करने के लिए उसमें मशीनिंग भी करनी है। हो सकता है उसकी सरफेस क्वालिटी बढ़ाने के लिए, सरफेस फिनिश बढ़ाने के लिए हमको उस पर ग्राइंडिंग भी करनी पड़े, ठीक है ना। सो मशीनिंग इज अ हाई accuracy and the finish essential to enable the product to fulfill the function। फंक्शनल रिक्वायरमेंट के लिए जरूरी है, कहाँ पे फंक्शन होगा, उसकी परफॉर्मेंस क्या रहेगी और उसकी सर्विस क्या देगी, तो इसके लिए हम लोग मशीनिंग करते हैं। नेक्स्ट इज द कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेसेस क्या है हमारे पास, अभी हमने डिस्कस किया था टर्निंग, ग्राइंडिंग, थ्रेडिंग, मिलिंग, नर्लिंग, बोरिंग, ये सब जो ऑपरेशंस हैं ये आपने पढ़े हुए हैं सेकेंड ईयर में, ठीक है ना। सो ये कटिंग सारे प्रोसेस कौन से हैं, मशीनिंग के कन्वेंशनल प्रोसेस हैं। दिस इज द फिगर ऑफ द मशीनिंग प्रोसेस, दैट लेथ, दिस इज द वर्क पीस, ये अराउंड रोटेट कर रहा है, एंड देयर इज ए टूल, देयर द चिप इज फॉर्म, है ना। तो चिप फॉर्म हो रही है जब हम इसको टूल को इसके अगेंस्ट में रिलेटिव मोशन दे रहे हैं, तो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ चिप एज अ रिमूवल ऑफ मटेरियल फ्रॉम द वर्कपीस टू टर्न इट इनटू द फाइनल प्रोडक्ट। And another is the milling process। milling process में क्या है, the tool is the multi point कटिंग टूल। इसमें क्या होगा, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होगा और ये इस टाइप से इसको रिमूव करेगा और ऐसे आप इसमें फीड देंगे। ड्रिलिंग प्रोसेस क्या है, टू डू सम होल्स in the on the job, so that is called the drilling process। drilling bit is the डबल हैविंग द डबल टू कटिंग एजेस, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल बोलते हैं। कितनी एजेस होती हैं उसमें, टू, ओनली टू कटिंग एजेस, ठीक है ना। आप ध्यान रखें इसमें कि दो कटिंग एज होती हैं ड्रिलिंग बिट में। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में एक कटिंग एज होगी और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में जैसे मिलिंग कटर है उसमें बहुत सारी मिलिंग कटर होंगी, कटिंग एजेस होंगी एज पर देयर पेरीफेरी, ठीक है ना। सेम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हम शेपर में भी काम में लेते हैं, ब्रोचिंग में हम जो काम लेते हैं दैट इज आल्सो कॉल्ड द मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। ब्रोचिंग टूल क्या होता है, ब्रोचिंग टूल एक सिंगल स्टॉक में फिनिश प्रोडक्ट निकालता है। सपोज आपके पास एक ब्लैंक है, ब्लैंक इन द फॉर्म, ब्लैंक मतलब एक जॉब है, स्क्वायर का जॉब है एक, है ना, और मान लीजिए उसकी थिकनेस जो है वो 10 mm का जॉब है
और क्यूब आपके पास क्यूबाइड में कटा हुआ है, तो वो 10 mm का जॉब है। अब उसके बीच में सेंटर पे आपको एक स्क्वायर काटना है सपोज, तो स्क्वायर वो कैसे कटेगा, स्क्वायर ब्रोचिंग प्रोसेस से कटेगा। किससे कटेगा? ब्रोचिंग प्रोसेस से कटेगा, क्योंकि वहां पे कोई दूसरा प्रोसेस काम में नहीं आएगा कन्वेंशनल मशीनिंग का। ठीक है ना, नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग में जाएंगे तो बहुत सारे प्रोसेसेस मिलेंगे आपको। सेंटर पे कुछ भी गियर के शेप में कुछ काटना है आपको, कुछ प्रोफाइल काटनी है सेंटर के अंदर, है ना, तो वहां पे क्या काम में आएगा, हमारे पास ब्रोचिंग टूल काम में आएगा। तो वहां पे हम लोग, तो ब्रोचिंग टूल भी क्या है, दिस इज अ मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। इसके अलावा ग्राइंडिंग जो हम करते हैं वो भी, उसकी भी, उसमें भी एब्रेसिव्स हैं, और हर एब्रेसिव की देयर आर द मल्टी कटिंग एजेस, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स। अब हमारे पास आता है द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मशीनिंग प्रोसेसेस क्या है। सो दे improve the surface finish of the workpiece by surface finishing operation. It is economical to produce the component by machining process, and the machining operation is used to get the dimensional accuracy of the workpiece. किसी की भी चीज की हमको डायमेंशनल, ये टाइम शायद खत्म होने वाला है मेरे ख्याल में 10 मिनट है अभी, फिर ये मेरे को मैसेजेस क्यों दिखा रहा है। ओके हाँ, 10 मिनट्स आर रिमेनिंग, सो थोड़ा सा जल्दी से करेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या है कि अब मशीनिंग प्रोसेस से हमको क्या मिल रहा है, एक तो सरफेस फिनिश मिल रही है जिसको कि हम एज ए फाइनल प्रोडक्ट उसको यूज कर सकते हैं। उसकी डायमेंशनल एक्यूरेसी करने के लिए हमको मशीनिंग की जरूरत पड़ती है। सपोज जैसे कास्टिंग करी तो कास्टिंग में उसकी डायमेंशन जो है वो एक्यूरेट नहीं आई है, कहीं पर हमको इंटरचेंजेबिलिटी करनी है। इंटरचेंजेबिलिटी मतलब कहीं पर हमको उसकी असेंबली करनी है ना, और उसकी असेंबली करने के लिए कहीं पर होल है, कहीं पर शाफ्ट है, वो शाफ्ट जो है वो होल पे बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करनी चाहिए विद द लिमिट ऑफ द देयर फिट्स। तो इंटरफेरेंस फिट्स है या कोई सी फिट है, ये डिपेंड करेगा प्रोडक्ट्स पे, बट हमको उस फिट्स के अनुसार उसके अंदर उसको असेंबली करनी है, तो उसकी डायमेंशन जो है वो बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए, प्रोसेस हमारा इकोनॉमिकल होना चाहिए, उसकी सरफेस फिनिश एज डिजायर्ड होनी चाहिए जो हमको रिक्वायर्ड है। ठीक है ना, तो दीज आर द सम बेसिक आइडिया ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब इसके बाद हम कुछ मशीन टूल हैं, ये जो हमने अभी ऑपरेशन पढ़े, ये किन किन से अवेलेबल होते हैं, किस चीज से बनते हैं, ये किस चीज से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। जैसे लेथ है, मिलिंग है, ड्रिलिंग है, शेपर है, ग्राइंडिंग है, ये सारी चीजें जो मशीनिंग है, ये इनको हम क्या बोलते हैं, मशीनिंग टूल बोलते हैं, मशीन टूल बोलते हैं। कटिंग टूल अलग होता है, कटिंग टूल जो कट करने के लिए काम आता है। मशीन टूल किसको बोलते हैं, पूरी मशीन को बोलते हैं, मशीन बिल्डिंग को बोलते हैं। लेथ को बोलेंगे, मिलिंग को बोलेंगे, ड्रिलिंग को बोलेंगे, शेपिंग को बोलेंगे, प्लेनरिंग को बोलेंगे। एक प्लेनिंग आई यहाँ पे, जो प्लेनर है, दिस इज अ वेरी कॉमन डिफरेंस बिटवीन द शेपिंग एंड प्लेनिंग। प्लेनर में क्या होता है कि दोनों ही में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें हम लोग प्लेन कर रहे हैं। जैसे शेपर में आप कटिंग करते हैं, ऊपर की सरफेस को मशीन सरफेस हमारे पास आ जाती है, अनमशीन को मशीन कर लेते हैं, और मशीन सरफेस हमारे पास आ जाती है। 90 डिग्री ऑर्थोगोनल कटिंग करते हैं। सेम प्रोसेस हम इसमें भी करते हैं, लेकिन शेपिंग में क्या होगा, आपका टूल मूव करेगा, और प्लेनिंग मशीन में आपका वर्क पीस मूव करेगा। ये बहुत कॉमन डिफरेंस है जो बहुत बच्चों को नहीं पता होता और इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, तो आप इस बात का ध्यान रखें। शेपिंग मशीन में क्या होगा, शेपिंग मशीन में कटिंग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से कट होगा, प्लेनिंग में भी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से कट होगा, लेकिन शेपिंग मशीन में टूल मूव करेगा। और प्लेनिंग में क्या होगा, प्लेनर मशीन में क्या होगा, वर्क पीस मूव करेगा। और इसलिए वर्क पीस मूव करेगा मतलब बहुत बड़ा वर्क पीस होगा और उसको मूव करवाना है, इसलिए ये बहुत बड़े स्केल पे, जहाँ पे बहुत बड़ी हमको मशीनिंग करनी होती है, बहुत बड़े जॉब्स होते हैं, वहाँ पर हम लोग इसको काम में लेते हैं। आप शेपर मशीन को लैब में जाके देख सकते हैं, प्लेनर मशीन को एज्यूम कर सकते हैं कि टूल की जगह आपका वर्क पीस मूव कर रहा है। ठीक है ना, तो इसके अलावा इसमें है कटिंग टूल। अब कटिंग टूल को हम लोग कल थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। उसमें कटिंग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल क्या है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल क्या है, अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि कटिंग टूल इज द एलिमेंट ऑफ द मशीन विच इज यूज टू रिमूव द मटेरियल फ्रॉम द वर्क पीस। जो मटेरियल रिमूव कर रहा है वर्क पीस से, उसके लिए हमको मशीन टूल के साथ क्या रिक्वायर्ड है, एक कटिंग टूल रिक्वायर्ड है। ठीक है ना, और वो कटिंग टूल का मटेरियल कैसा होना चाहिए, दैट शुड बी हार्डर एज कंपेयर टू द वर्क पीस। ठीक है, वर्क पीस से हमेशा हार्डर होना चाहिए।
तो इसमें दो टाइप के क्लासिफिकेशन करते हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल एंड मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। सिंगल पॉइंट को हम यहाँ पे अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि उसको में क्या क्या एंगल्स होते हैं, टूल सिग्नेचर क्या है, उसका नोमेनक्लेचर क्या है, ये हम अगले उसमें डिस्कस करेंगे टूल कटिंग कटिंग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को। और अभी के लिए यहाँ तक ही हम लोग इसको एंड करेंगे, इसको चैप्टर को हम लोग अभी यहीं पर एंड करेंगे। और अब थैंक यू फॉर दिस, just wait.